اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے غزہ کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل نے کس طریقے سے تباہی مچائی۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقوام متحدہ UN کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 50,000 کے قریب تو بچے شہید یا زخمی ہوئے ہیں، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کے جرم کے خلاف، اسرائیل کے ظلم کے خلاف اب پوری دنیا میں مظاہرے، احتجاج اور آندولن ہو رہے ہیں۔ اور آج کی خبر بتا رہی ہے کہ اسرائیلی حکومت کے خلاف خود اسرائیل کی سڑکوں پر جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یعنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ خود اپنی ہی حکومت اسرائیل، اپنے ہی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ غزہ میں یرغمال بنائے گئے افراد کے اہل خانہ یعنی مجاہدین نے، حماس نے جن اسرائیلیوں کو یرغمال کیا ہے، کڈنیپ کیا ہے، ان کے گھر والے خود اب غصے میں اپنی ہی حکومت اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ مظاہرین کی مہم تیز ہو چکی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے۔ جنگ کے دوران اسرائیلی فوج غزہ پر مسلسل حملے کر رہی ہے۔ ادھر اسرائیلی حکومت کے سامنے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ اسرائیل میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایگریمنٹ کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کی مہم تیز ہو گئی ہے۔ صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ پولیس کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کرنا پڑا اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں ایک یرغمال اپنی ہی قبر کھودتے ہوئے، ایک یرغمال کو اپنی ہی قبر کھودتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ یرغمالی کی اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد اسرائیل میں خود اسرائیلی حکومت کے خلاف لوگ غصے میں ہیں اور اپنی ہی حکومت کے خلاف سڑکوں پر مظاہرے کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹیرف کی دھمکیاں کسی کو بھی دے رہا ہے۔ گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو ایک خبر بتایا تھا، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ برکس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کے خلاف برکس ایک دیوار بن گیا، اور اب لگتا ہے کہ امریکہ کے ڈالر کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ بھارت، چین اور روس کی جگل بندی بھی سامنے آ رہی ہے۔ ٹرمپ نے بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو تباہ کر دیا۔
जी हाँ, ट्रंप के ताल्लुकात ने भारत के ताल्लुकात को भी खत्म कर दिया है। अब भारत ने भी अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ अपनी नई मंसूबाबंदी शुरू कर दी है और इसके लिए ब्रिक्स की अहमियत को अब समझा जा रहा है और ब्रिक्स अब मजबूत दीवार बनकर ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो चुका है। इससे पहले जब मगरबी ममालिक, वेस्टर्न कंट्रीज, खुसूसन अमेरिका ब्रिक्स पर तनकीद करते थे तो ऐसा लगता था कि वो चीन के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म जिस तरह ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एक दीवार बनकर उभरा है, इससे हमें एहसास हो रहा है कि अमेरिका ब्रिक्स से हमेशा नाराज क्यों रहता है। खैर, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं दूसरे मुल्कों को भी अमेरिका का दुश्मन बना रही है और खुद अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप अपने दुश्मन पैदा कर रहा है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर गज्जा और फलस्तीन को लेकर ही आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल सहयूनी फौज की इमदाद का इंतजार कर रहे फलस्तीनियों पर इजराइल ने बमबारी की और 57 फलस्तीनियों के शहीद होने की खबरें आ रही है। मैं आपको बता दूं कि गज्जा के 5 लाख अफराद गज्जा के 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं और गज्जा में इस वक्त भूख और फाके से बच्चे दम तोड़ रहे हैं और जब भी इमदाद का इंतजार कर रहे फलस्तीनी बर्तन लेकर उन इमदाद सेंटर्स पर खड़े होते हैं तो इस मौके पर इजरायली फौज उन पर बमबारी करती है या गोलियां चलाती है। गुज़िश्ता कल भी इमदाद के इंतजार करने वाले फलस्तीनियों पर इजरायली फौज ने, सहयूनी फौज ने गोलियां चलाई और 57 फलस्तीनियों के शहीद होने की खबरें आ रही है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि गज्जा के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि 5 लाख गज्जा के लोग, फलस्तीन के लोग कहत का शिकार है। इजरायली फौज ने इमदाद का इंतजार कर रहे फलस्तीनियों पर फायरिंग की और बमबारी का सिलसिला भी जारी रखा, जिसकी वजह से हर रोज फलस्तीनियों की शहादत की खबरें आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फोर्सेस की फायरिंग से इमदाद का इंतजार कर रहे 38 फलस्तीनी गुज़िश्ता कल भी शहीद हुए हैं। और बड़ी खबर यह भी है कि इजरायली फौज लगातार गज्जा पर कब्जा कर रही है और गुज़िश्ता कल इजरायली फौज ने गज्जा पर कब्जे की मंजूरी भी दे दी है। इजरायली फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट ने गज्जा सिटी पर कब्जे के मंसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है और उधर इजरायली धमकियां दे रहे हैं कि बाहर निकल जाए, लेकिन हमास ने, मुजाहिदीन ने गज्जा खाली करने का इजराइल का मंसूबा ठुकरा दिया है, मुस्तरद कर दिया है। फलस्तीन की मुजाहमती तहरीक हमास ने गज्जा को खाली कराने के इजराइल के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए इसको नस्लकुशी और फलस्तीनियों को बेघर करने की एक नापाक मुहिम करार दिया है। नाज़रीन, चौथी बड़ी खबर भी चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हाँ, कहते हैं ना कि जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलता है, दादागिरी ज्यादा देर तक नहीं चलती है और नफरत की उम्र, हमारे राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत की उम्र कम होती है। जी हाँ, अब अमेरिका से ये खबर आ रही है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके ही लोग मैदान में उतर गए हैं। जी हाँ, ट्रंप के खिलाफ ट्रंप के लोग ही मैदान में उतर गए हैं और खबर है कि फाइट दी ट्रंप टेक ओवर बैनर तले तकरीबन 34 स्टेट्स, अमेरिका की 34 रियासतों में अब ट्रंप के खिलाफी आंदोलन, मुजाहरे और एहतजाज हो रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप एक तरफ रूस और यूक्रेन के दरमियान चल रही जंग को खत्म कराने में लगे हैं तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान समेत दीगर ममालिक पर बहुत ज्यादा टैरिफ आयद कर रहे हैं ट्रंप। लेकिन ट्रंप को अब खुद अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों की सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी शहरी रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिसियों के खिलाफ जबरदस्त अमेरिका की 34 स्टेट में अब ट्रंप के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। अमेरिका में 16 अगस्त को मजदूर ग्रुपों और जमहूरियत के हामियों की जानिब से सैकड़ों रैलियां और प्रोग्राम्स ट्रंप के खिलाफ हुए हैं, जिनमें ट्रंप इंतजामिया की जानिब से टेक्सास में रिपब्लिकन के हक में कांग्रेस का नक्शा बदलने की कोशिशों की मुखालिफत की जा रही है। यानी ट्रंप के खिलाफ खुद अमेरिका में ही अब एहतजाज और आंदोलन शुरू हो चुके हैं। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर, जी हां, तमाम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन
तनकीद से बालातर है। सहाबा पर कोई तनकीद करे वो काफिर हो जाएगा। सहाबा तनकीद से बालातर है और हम सबका ईमान है कि वो जन्नती हैं। जी हाँ, नेपाल की मारूफ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर अपना इज़हार ख़याल किया। उन्होंने कहा, काठमांडू नेपाल से नूरुल हक कासमी की रिपोर्ट आ रही है। उन्होंने कहा कि यकीनन हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन शरीयत हक्का के अव्वलीन मुखातिबीन हैं और यही दरअसल शरीयत के असल मुहाफिज़ीन हैं। सहाबा ही शरीयत के असल मुहाफिज़ीन हैं और यही वो मुबारक लोग हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिला वास्ता और बिल मुशाफा कसबे फैस किया है। सहाबा की जमात की अजमत व बड़ाई, कदर व मंजिलत और तकद्दुस के मुतालिक उलमाए नेपाल ने उम्मत के नाम अपने पैगामात जारी किए हैं। चुनांचे मुल्क नेपाल की मारूफ और अजीम सियासी शख्सियात की जानिब से कई अहम और काबिल तकरीम एवार्ड से सरफराज अबकरी आलिम दीन मौलाना मोहम्मद हारून खान मजहरी, सदर जामिया हफ्स अल बनात और दारुल उलूम हिदायतुल इस्लाम, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत नेपाल और नायब सदर जमीयत उलमा नेपाल, इन तमाम लोगों ने बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के काम पर, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के काम पर इज़हार ख्याल किया, खुशी का इज़हार किया और बताया कि हमारे इलाके में भी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और पूरे हिंदुस्तान में भी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बहुत ही उम्दा और बेहतर अंदाज में काम कर रही है और सहाबा पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले रही है और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दीन की हिफाजत का काम और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम बहुत बेहतर अंदाज में कर रही है। मैं भी अपने तरफ से मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट